Okay, roll number 15, Deepak Mandal. What is photolithography? Unmute yourself and give the answer. Hello, Deepak. Deepak Mandal, are you there? Okay, roll number 13, Shubh Kansara. Hello. Yes, miss. Okay, so give the answer. What is Photo photolithography? What is photolithography? photolithography is a fabrication process used for making chips. So what is the meaning of litho? What? लिथो का मीनिंग क्या है? फोटो लिथोग्राफी ना, तो लिथो का मीनिंग क्या है? ये मैंने कल बताया था ना, कल मीन्स प्रीवियस लेक्चर. फोटो मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स व्हाट? UV light. फोटो मीन्स यूवी लाइट, ठीक है. एंड लिथो मीन्स? Litho. ओके, लक्ष्मी, रोल नंबर 17, लक्ष्मी मिश्रा. लक्ष्मी मिश्रा, आर यू देयर? हेलो, लक्ष्मी मिश्रा, आर यू देयर? रोल नंबर 24, जस परमार. सेम Yes, क्वेश्चन. ma'am. सेम क्वेश्चन. व्हाट इज फोटोलिथोग्राफी? Ma'am, photolithography is the process of etching silicon using UV light. Yes, okay, that is right. और यू कैन से इचिंग सिलिकॉन, और यू कैन से पैटर्निंग ऑफ सिलिकॉन. ओके, सिलिकॉन को अगर पैटर्न करना है देन वी यूज यूवी लाइट एंड मास्क. ओके, मास्क यूज करते हैं और यूवी लाइट यूज करते हैं. यूजिंग दैट वी आर पैटर्निंग दी सिलिकॉन. सो फोटो मीन्स लाइट एंड लिथो मीन्स स्टोन. सो जो स्टोन मतलब हियर इट इज द सिलिकॉन. सो वी आर पैटर्निंग द सिलिकॉन यूजिंग लाइट. व्हाई वी नीड टू पैटर्न? व्हाई वी नीड टू पैटर्न द सिलिकॉन? क्यों करना है पैटर्न? क्यों करना to है? remove unwanted materials. टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, राइट है. और यू कैन टेक एनी स्टेप ना. To get a सपोज यू desired output of the गेट silicon chip. गेट द डिजायर्ड आउटपुट. आउटपुट नहीं बोल सकते उसको. सी, नाउ हियर यू कैन सी Or दिस to पर्टिकुलर फिगर. remove unwanted silicon oxide. Yes, unwanted silicon. Okay, so that is etching process. Lithography, photolithography means, suppose if I want to, now here in this particular figure H, you can see this, there is a gate area. Okay, a gate area है. So I want that gate should be deposited in this particular area only. Okay, बाकी सब जगह पे मुझे gate नहीं चाहिए. Okay, I want only this particular area, or you can say n plus diffusion regions. तो n plus diffusion region अभी कहाँ कहाँ पे है? There is a source and there is drain. तो ये source का region है, ये drain का region है. So those regions are specified already. Okay, so in that region only I want diffusion of n plus material, or you can say donor ions I want to deposit only in that particular area which is dedicated to source और drain. ठीक है, बाकी जगह पे अपने को n plus नहीं चाहिए. So whenever we want to do the precise doping, okay, precise doping करना है, then that is done with the help of patterning. Okay, and that patterning is done with the help of photolithography process. ओके, सो इससे हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ये पर्टिकुलर रीजन में ही n प्लस का डिफ्यूजन होगा. और यू कैन से इन इन एनी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे तुम लोग, इफ यू वांट हियर गेट, तो वहाँ पे सिर्फ गेट ही चाहिए. ओके, गेट सब जगह पे नहीं चाहिए. दैट मीन्स रिमेनिंग गेट यू विल इच्ड आउट फ्रॉम यूजिंग द लिथोग्राफी प्रोसेस. सो लिथोग्राफी मीन्स पैटर्निंग. पैटर्निंग मतलब यूजिंग लाइट वी कैन मेक एनी पैटर्न ऑन द सिलिकॉन. ओके, एज वी वांट. सो दैट इज द मेन प्रोसेस जो तुम लोग को वाइवा में पूछेंगे हम लोग. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो दैट इज द photolithography. And I think in previous lecture we have completed with the NMOS fabrication flow. So we have completed with this last figure which is L. So this is the complete fabricated NMOS transistor.
Okay, now here one question. What is this black color layer? Can anybody tell me? What is this black color layer? Metal contact. Yes, right. It is a metal contact or you can say metal layer, right? So metal contact का use क्या है? Why we need to deposit that particular layer? So we can connect terminals. Yes, right. So that we can connect this MOSFET to any other, or you can say we can connect this MOSFET in a circuit. ठीक है, जहाँ पे भी तुम लोग को connect करना है, we can connect. So this is called as a ठीक है. सो हम लोग ने एनमॉस का प्रोसेस कंप्लीट किया था. पीमॉस तुम लोग को अभी पता है कैसे करना है. सिमिलर वे में पीमॉस होगा. which substrate has to be used. Okay, यहाँ पे instead of n plus there will be p plus region. Okay, instead of p substrate there will be n substrate. So that is your pmos. तो वो pmos का similar flow तुम लोग को अगर ये क्वेश्चन आया pmos के लिए then you can draw similarly for pmos. सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? instead of n plus there will be p plus dome. Take n type substrate. Okay, so that will be the difference. Now one question again based on previous topic. How do we make these regions? Okay, n plus regions जो है यहाँ पे which are the source and drain regions. How can we make these regions in silicon substrate? What are the process which are used? अगेन ये मैंने बताया था तुम लोग को और बोला था कि ये याद रखो. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द प्रोसेस यूज्ड? मुझे अगर ये एक्टिव एरिया क्रिएट करना है, ओके, सोर्स एक्टिव एरिया एंड ड्रेन एक्टिव एरिया, n plus diffusion. Diffusion and photolithographic process. नहीं, फोटोलिथोग्राफी तो सब वो हर एक टाइम पे लगता ही है, दैट इज फॉर पैटर्निंग. बट ये सिर्फ अगर मुझे डिफ्यूजन एरिया क्रिएट करना है, सो दैट इज राइट. वन डिफ्यूजन प्रोसेस इज राइट. व्हाट इज द अनदर प्रोसेस? Ion implementation. Yes, right. Ion implantation. Okay. Yes. Please all of you write down these two. Please write down for making this active area. Okay, active area मतलब source and n plus drain. N plus source and n plus drain. These are called as active area. Okay. To make this active area, it is done by two processes. Either of two. This one is diffusion and second is the ion implantation. Write down these two names. These are very important. Ion implantation and diffusion. ठीक है. Okay. So next is now we will study the fabrication process for CMOS. कल last time हम लोगों ने CMOS का full form पढ़ा था. What is full form of CMOS? Complementary metal oxide semiconductor. Yes, right. It is complementary MOS. Okay, MOS तो तुम लोग को पता है. Complementary. What do you mean by this? Complementary मतलब? It will contain P as well as N channel Yes. metal oxide. Yes, you can say एक ही टब में, okay, और एक ही स्ट्रक्चर में we have both the MOSFETs fabricated. Okay, so that structure is called as CMOS. So हम लोग ने लास्ट टाइम फाइनल डायग्राम पढ़ा था. Ma'am, what is the application of CMOS? CMOS का एप्लीकेशन हम लोग अभी आगे जाके इन्वर्टर पढ़ेंगे. ओके, CMOS इज अ टेक्नोलॉजी. सो CMOS टेक्नोलॉजी से यू कैन सी व्हेन वी विल स्टडी दी डिजाइन स्टाइल, तो उसमें एक CMOS का स्टाइल आएगा. CMOS मतलब क्या? दोनों MOS यूज करके, दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट्री MOS. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स PMOS एज वेल एज NMOS. अभी तुम लोग को पता है इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं? Can I say PMOS is a complement of NMOS? Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट मतलब पता है ना तुम लोग को? इनवर्स टाइप. ओके, उल्टा. सो PMOS एंड NMOS दोनों का जो ऑपरेशन है एग्जैक्टली ऑपोजिट है. ओके, सो दोनों MOSFET अगर साथ में काम करेंगे और इफ देयर आर इन वन स्ट्रक्चर देन दैट पर्टिकुलर MOSFET विल बी कॉल्ड एज CMOS. अगर सिर्फ PMOS है तो वो PMOS, सिर्फ NMOS है तो NMOS. बट दोनों भी MOSFET एक ही स्ट्रक्चर में अगर इंक्लूडेड है then that structure is called as CMOS, which you can see here in figure 1.38. यहाँ पे 1.38 में जो तुम लोग को दिख रहा है ये वो स्ट्रक्चर है. ओके, सो दिस इज अ CMOS स्ट्रक्चर. अभी इसका एप्लीकेशन मतलब आगे जाके हम लोग सर्किट स्टडी करेंगे. सपोज मैंने अभी तुम लोग को आगे जाके वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सर्किट दैट विल बी द इन्वर्टर. ओके, सबसे पहले हम लोग इन्वर्टर पढ़ेंगे. अभी इन्वर्टर मतलब तुम लोगों ने नॉट गेट देखा है DSD में, राइट? यू हैव स्टडीड नॉट गेट.
ओके तो वो जो नॉट गेट है वो तुम लोगों ने सिर्फ अभी कैसे ड्रॉ किया था, एक ट्राइंगल, फिर एक उसके आगे एक बबल, एंड दैट इज द नॉट गेट का सिंबल. ओके एंड यू नो कि नॉट गेट को अगर तुम लोग 1 दोगे तो आउटपुट 0 आएगा, इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 1 आएगा. सो डिजिटल लॉजिक, यू नो हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दैट यूजिंग नॉट गेट. बट अभी वो नॉट गेट को विच दैट नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन्वर्टर. ओके उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं. तो वो इन्वर्टर मुझे यूजिंग मॉसफेट बनाना है. ओके आई हैव टू मेक दैट इन्वर्टर यूजिंग मॉसफेट. सो there are various technologies, or you can say various logic design styles are there which are available to make this inverter circuit. उसमें से एक स्टाइल है CMOS यूज करके. ओके यू कैन यूज अ CMOS. CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मॉस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर यूज करके तुम लोग इन्वर्टर का सर्किट बनाओगे. दैट वी विल स्टडी आफ्टर दिस मॉड्यूल. ठीक है. सो आई थिंक दैट विल बी इन अ सेकंड मॉड्यूल. मॉड्यूल 2 में वो हम लोग चालू करेंगे इन्वर्टर सर्किट. सो CMOS के बहुत सारे एप्लीकेशन है. सो CMOS मतलब इतना याद रखो, कोई भी सर्किट, ओके इट कैन बी एनालॉग, इट कैन बी डिजिटल. ओके एनालॉग सर्किट मतलब एम्पलीफायर, एंड डिजिटल सर्किट मतलब अभी तुम लोग को मैंने बताया इट विल बी गेट, जो भी गेट्स है, ओके फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, मर्क्स. तो ये सब जो है वो डिजिटल है. तो कोई भी सर्किट हो डिजिटल और इट मे बी एनालॉग, सो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ CMOS स्ट्रक्चर. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ CMOS. इज इट ओके? हेलो. Yes, ma'am. ठीक है. ओके सो ये 1.38 हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस थिंग्स. ओके एक ही स्ट्रक्चर में हाउ वी कैन फॉर्म पी मॉसफेट एज वेल एज एन मॉसफेट. ओके सो आई विल जस्ट आस्क सम क्वेश्चंस. कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज पी सबस्ट्रेट. ओके ये पी सबस्ट्रेट है कंप्लीट. तो ये पी सबस्ट्रेट में हम लोग ने यहाँ पे एक मॉसफेट फॉर्म किया है. सो विच मॉस इज दिस? If you can see the NMOS. cursor, yes, this is NMOS. NMOS. Yes, right. Yeah, NMOS hai. So this is you know that this will be source, this will be drain. Now next question, what is this P plus P plus? Body terminal. Yes, right. Okay, so this is the body terminal of what? Which MOSFET? NMOS. Yes, right. NMOS. See, बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं, I will assume you know this thing. Okay, if you don't know, please note it down. क्योंकि सब लोग आंसर नहीं कर रहे, सिर्फ 1-2 लोग ही आंसर दे रहे हैं. सो मैंने कल ही लास्ट टाइम ही बोला था, प्लीज ऑल ऑफ यू शुड स्पीक अप. ठीक है. नेक्स्ट. सो याद रखो ये जो यहाँ पे जो P प्लस रीजन है, दिस P प्लस इज फॉर टेकिंग आउट द बॉडी टर्मिनल ऑफ दिस पर्टिकुलर NMOS ट्रांजिस्टर. नेक्स्ट. नाउ वी विल क्रिएट एनवेल. ओके एनवेल में हम लोग ने फिर P प्लस 2 रीजन दैट इज सोर्स एंड ड्रेन हम लोग ने डिफ्यूज किया. So this will form, and बीच में ये गेट है, ये पॉलीसिलिकॉन है बीच में गेट. So now this will form PMOS. Now again, what is this N plus over here? N plus region ये क्या है? What is this N plus region? Body of P Body MOS. of, yes, body of P MOSFET, right? This is the body terminal. मतलब body terminal अगर मुझे लेना है P MOSFET का, ये वाले P MOS का, तो हम लोग यहाँ से लेंगे. Okay, so this is the body terminal. So this is the complete, I think CMOS structure, complementary MOSFET, which includes both the MOSFETs, that is PMOS as well as NMOS. NMOS will be in P substrate, whereas PMOS is constructed inside the N-well, and that N-well is in the P substrate. So is this structure clear? Yes, Hello? ma'am. Yeah. Okay. Yes, ma'am. किसी कोई ऐसा है जिसको ये स्ट्रक्चर नहीं समझा, प्लीज आस्क नाउ. आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ओके इज अभी कुछ डाउट है तो अभी पूछो. CMOS स्ट्रक्चर में CMOS स्ट्रक्चर फिर से बताऊं. ओके ठीक है. CMOS स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री MOS. कॉम्प्लीमेंट्री MOS मीन्स एक स्ट्रक्चर में PMOS भी होगा, NMOS भी होगा. ओके दोनों MOSFET एक ही स्ट्रक्चर में चाहिए. ठीक है. अभी यहाँ पे इफ यू सी, ये बाहर तुम लोग को एक P सबस्ट्रेट दिख रहा है. ओके सो दिस इज कंप्लीट, दिस इज वन P सबस्ट्रेट, एक पूरा P सबस्ट्रेट है. ये P सबस्ट्रेट मतलब इट इज अ सिलिकॉन मटेरियल डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सो दैट इट विल बिकम P टाइप. इज इट ओके? इतना समझा? Yes, ma'am. ओके ठीक है. नेक्स्ट
अभी ये पी सबस्ट्रेट में मुझे एनमॉस भी बनाना है और पीमॉस भी बनाना है, तो एनमॉस कैसे बनाएंगे? अभी पी सबस्ट्रेट में आई कैन डिफ्यूज दिस पी एन प्लस, ओके, एन प्लस रीजन हम लोगों ने डिफ्यूज किया, मतलब एनमॉस हम लोगों ने यहीं पे बना दिया, okay. So n MOSFET transistor can be fabricated inside the p substrate, ठीक है। सो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे n प्लस डिफ्यूजन, फिर ये पॉली तो है ही। अभी ये पॉली कैसे आता है, n प्लस कैसे आता है, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी जब अभी nmos का मैंने फैब्रिकेशन बताया उस टाइम हम लोग ने स्टडी किया। सो यू नो हाउ टू मेक दीज एक्टिव रीजन्स ऑफ n प्लस एंड हाउ टू डिपॉजिट द पॉली विच विल एक्ट एज अ गेट। तो यहाँ पे ये n प्लस बन गया, n प्लस, और यू कैन से यहाँ पे nmos बन गया। नाउ nmos के साथ में यहाँ पे यू कैन सी द p प्लस रीजन। ये p प्लस रीजन क्यों है? दिस रीजन इज एक्चुअली देयर टू टेक द बॉडी टर्मिनल आउट फ्रॉम दिस p सबस्ट्रेट, ओके। ये p सबस्ट्रेट को कोई कनेक्टेड चाहिए p मटेरियल विच विल बी यूटिलाइज्ड एज अ बॉडी टर्मिनल, ओके। बॉडी मतलब सबस्ट्रेट टर्मिनल, तो उसके लिए हम लोगों ने ये p प्लस रीजन यहाँ पे डिफ्यूज किया। सो नाउ दिस nmos इज क्लियर, ये वाला पार्ट। यस मैम। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब nmos हो गया, अभी pmos भी चाहिए। अभी pmos मुझे फैब्रिकेट करना है, सो इफ आई वांट टू फैब्रिकेट pmos inside p substrate, is it possible? Can I diffuse pmos p plus active region in p substrate again? Can I form pmos again in p substrate? pmos p substrate में फॉर्म होगा क्या? यस मैम। फॉर्म हो सकता है p MOSFET p सबस्ट्रेट में? नो मैम, नो। हाँ नो हाँ, मैम। प्लीज ये नोट डाउन करो जिनको भी ये नहीं पता है। p सबस्ट्रेट सॉरी p MOS p सबस्ट्रेट में नहीं फॉर्म होगा, p MOS n सबस्ट्रेट में ही फॉर्म होगा, ओके। मतलब अगर मुझे p MOS फैब्रिकेट करना है तो मुझे n सबस्ट्रेट चाहिए, और अगर मुझे nmos फैब्रिकेट करना है तो मुझे p सबस्ट्रेट चाहिए। ये याद रखो, प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इफ यू वांट टू फैब्रिकेट nmos ट्रांजिस्टर यू नीड अ p सबस्ट्रेट, p सबस्ट्रेट में nmos ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन होगा। मतलब जो भी तुम लोग को मॉस फैब्रिकेट करना है उसका ऑपोजिट सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ, तो अभी मुझे क्या nmos हो गया, अभी pmos करना है, तो pmos करने के लिए आई कांट फैब्रिकेट pmos इन p सबस्ट्रेट ओनली, ओके। p सबस्ट्रेट में हम लोग p सबस्ट्रेट में pmos नहीं फैब्रिकेट कर सकते। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक वन n वेल, मतलब ये p सबस्ट्रेट में हम लोग एक n टाइप का रीजन क्रिएट करेंगे विच इज कॉल्ड एज अ वेल, okay. So this region of n type material is called as n well. तो ये वेल क्रिएट करते हैं। अभी ये वेल अगेन देयर आर वेरियस मेथड्स टू क्रिएट अ वेल, अगेन वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट मेथड्स, दोज मेथड्स। हम लोग सिर्फ इतना तुम लोग को लिखना है कि n well is created inside the p substrate and in this n well हम लोग pmos ट्रांजिस्टर जो pmos है उसको फैब्रिकेट करेंगे। इज इट ओके? यस मैम। हाँ, तो ये जो यहाँ पे बना है ये पीमॉस है। अभी ये पीमॉस के बाजू में ये जो एन प्लस है ये क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एन प्लस? अभी ये एनवेल है, ये एनवेल, ये दिस एनवेल इज एक्टिंग एज अ बॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर मॉसफेट। कैन आई से लाइक दैट? कैन आई से लाइक दैट? दिस एनवेल इज एक्टिंग एज अ बॉडी फॉर दिस पीमॉस, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो ये पीमॉस के लिए बॉडी क्या है? एनवेल बॉडी है, क्योंकि ये पीमॉस एनवेल के अंदर है, तो वो जिसके अंदर है वो उसका बॉडी है, समझा? सो ये पीमॉस के लिए बॉडी क्या है? एनवेल है। तो बॉडी का एक कांटेक्ट मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे आई मे रिक्वायर इट इन फर्दर कनेक्शन। सो वो बॉडी का कांटेक्ट निकालने के लिए आई हैव डिफ्यूज हियर एन प्लस रीजन, ये और एक एन प्लस रीजन यहाँ पे p प्लस के बाजू में यहाँ पे जो n प्लस है, सो दैट रीजन इज नथिंग बट एक्चुअली टू टेक द बॉडी टर्मिनल आउट। और ये जो बॉडी रहेगा वो किसका रहेगा? वो रहेगा ये p प्लस मॉस का, और यू कैन से ऑफ दिस p मॉस। इज इट ओके? अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, सो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ CMOS विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। अभी तुम लोग को सी, आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस hello. फैब्रिकेशन प्रोसेस,
अभी ये एकदम सिंपल है। अभी एक बार तुम लोग को वो समझा, मतलब तुम लोग को पता है कि एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। मुझे फाइनली आई वांट टू मेक दिस कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। तो कॉम्प्लीमेंट्री मॉस बनाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स। तो हम लोग अभी जल्दी से जल्दी एकदम क्विकली वी विल सी ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले हम लोग बेयर पीस सबस्ट्रेट लेंगे। ओके, वी विल टेक अ बेयर पीस सबस्ट्रेट, बड़ा वाला। उसके ऊपर we will do the oxidation. So the upper layer there will be SiO2 form. फिर SiO2 के ऊपर हम लोग फोटो रेजिस्ट लगाएंगे। ओके, फोटो रेजिस्ट लगाने के बाद what we will do, we will use mask and ultraviolet light will be incident on this. उसके बाद क्या होगा, यूजिंग मास्क, जो अभी मास्क यूज किया है मतलब यहाँ पे सपोज इतने पार्ट पे ही लाइट गिरेगा, बाकी पार्ट पे लाइट नहीं गिरेगा। सो दैट पार्ट विल बिकम सॉल्यूबल, दैट पार्ट ऑफ फोटो रेजिस्ट विल बिकम सॉल्यूबल एंड दैट कैन बी इजीली इच्ड आउट। ओके, सो दैट इज द फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। मतलब हम लोगों ने पैटर्न किया है यहाँ पे। तो ऐसे ही पैटर्न करेंगे। अगेन दिस रिमेनिंग SiO2 वी विल रिमूव। ये वाला SiO2 हम लोग रिमूव करेंगे, इट विल बी इच्ड आउट। अभी ये एक बार SiO2 रिमूव कर दिया, तो अभी यहाँ पे व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मुझे यहाँ पे एनवेल फॉर्म करना है। अभी तुम लोगों को पता है एनवेल क्यों चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल फॉर्म द एनवेल। ओके, एक बार एनवेल फॉर्म हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन, दैट इज पहले तो थिनॉक्स डालेंगे, थिन गेट ऑक्साइड, एंड थिन गेट के ऊपर पॉली ऑक्साइड डाले, पॉलीसिलिकॉन डालेंगे। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज थिन गेट ऑक्साइड, एकदम छोटा सा लेयर है ऊपर। थिनॉक्स के ऊपर है पॉलीसिलिकॉन। नाउ दिस पॉलीसिलिकॉन इज एक्चुअली द गेट ऑफ द मॉसफेट। उसके बाद हम लोग इसको भी ईच करेंगे, क्योंकि मुझे पूरे सरफेस पे गेट नहीं चाहिए। आई नीड टू लिमिट द गेट। ओके, गेट का कुछ लेंथ रहेगा। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द गेट। यहाँ पे भी ये अभी अपने को दो गेट चाहिए, एक यहाँ पे गेट रहेगा, एक यहाँ पे गेट रहेगा। ये वाला जो गेट है वो रहेगा पीमॉस का, इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है दैट गेट विल बी ऑफ एनमॉस। ठीक है, सो उसके बाद अगेन उसको हम लोग फिर थिकॉक्स डालेंगे। उसके बाद उसको भी पैटर्न करेंगे। पैटर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग एन प्लस डिफ्यूजन करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग एन प्लस डिफ्यूजन के लिए उसका मास्क यूज करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मुझे एन प्लस को डिफ्यूज करना है। ओके, सो वी विल यूज हियर दैट पर्टिकुलर मास्क। वो सब मास्क बाद में हम लोग आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। तो वो मास्क क्या होता है। ओके, सो मास्क इतना याद रखो, जो पैटर्न मुझे सिलिकॉन पे चाहिए वो वाला मास्क यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुझे एन प्लस एरिया चाहिए, तो एन प्लस कहाँ कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो एन प्लस है, नो दिस एन प्लस इज नथिंग बट सोर्स एंड ड्रेन रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एन मॉस। एंड एन वेल के अंदर जो एन प्लस डिफ्यूजन है दैट इज द बॉडी टर्मिनल ऑफ एन बॉडी टर्मिनल ऑफ दिस पर्टिकुलर पी मॉस। ठीक है, तो जब हम लोग को एन प्लस का डिफ्यूजन करना है तो एक ही टाइम पे सभी एन प्लस डिफ्यूजन करेंगे। ओके, ऐसे नहीं होगा कि पहले तुम लोग ये एन प्लस करोगे उसके बाद फिर से ये एन प्लस करोगे। नो, जितने भी एन प्लस डिफ्यूजन है ऑल ऑल एन प्लस डिफ्यूजन्स आर मेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही टाइम पे सब एन प्लस डिफ्यूजन साथ में होगा यूजिंग मास्क एंड फोटोलिथोग्राफी। नेक्स्ट उसके बाद एन प्लस डिफ्यूजन हो गया, what will be the next thing, next thing will be p plus diffusion. Again we will use the p plus diffusion mask। and अभी p plus मुझे कहाँ कहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए ये एनवेल के अंदर दो p plus चाहिए। ठीक है, और एक p plus चाहिए ये p सबस्ट्रेट के यहाँ पे ये साइड पे। why, because this p plus will be acting as the body terminal of this particular NMOS। तो टोटल मुझे तीन p plus रीजन चाहिए। so again we will use the photolithography, we will use the p plus diffusion mask and we will diffuse all these three p plus regions। नेक्स्ट उसके बाद फाइनली मेटल लेयर, मेटल एंड थिकॉक्स है, ये तुम लोग को दिख रहा है ये वाला जो है वो थिकॉक्स है। और नेक्स्ट इज मेटल, मेटल इन्होंने यहीं पे दिखाया। ओके, इन्होंने ब्लैक कलर सी, अभी यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर से नहीं दिखाया, इन्होंने ये वाला दिखाया, दीज लाइंस, ये वाला जो क्रॉस है ना, यू कैन से ये वाला जो क्रॉस लाइंस है, दीज आर, दिस इज मेटल। ओके, और ये अंदर जो बॉक्स है ये पॉलीसिलिकॉन है, ये वाला जो है वो पॉलीसिमिलरली ये जो है दैट इज अ पॉलीसिलिकॉन विच इज गेट। So in this way we will fabricate the complementary MOS transistor। Is it okay, understood? Is there Yes, any doubt? ma'am. Okay, तो ये जो मैंने शॉर्ट में Hello. बताया, हाँ बोलो। Hello? Ma'am, can we use N substrate and create a p-chap p well? Yes, that can be done।
So like, can it affect its overall Uh, efficiency? थोड़ा अ, हाँ वो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा. And normally see when you are saying this अभी already experiments are done. ठीक है, मतलब ये करके देखा है कि P plus you can say P well में तुम लोग क्या करो, मतलब n substrate लोगे. Okay, you will take the n substrate में you can create a P well and then accordingly you can fabricate the MOS. तो obviously there will be difference, थोड़ा बहुत difference आएगा of operation में. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. ठीक है, नेक्स्ट इज अभी. हाँ, सो वी हैव कंप्लीटेड द फैब्रिकेशन ऑफ एनमोस. पीमोस तुम लोग पता है, तुम लोग को एनमोस का पता चल गया तो पीमोस यू नो. एंड देन इज थर्ड इज सीमोस. ये तीनों का फैब्रिकेशन स्टेप्स जो है, द डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम लोग को पता होना चाहिए. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 10 मार्क्स. लाइक explain the fabrication process for NMOS transistor or explain the fabrication process for CMOS transistor. तो उस टाइम पे तुम लोग को डायग्राम्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है. ओके, डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे सी आई विल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आई विल फॉरवर्ड दीज नोट्स टू यू. तो अभी ये जो नोट्स है ये मैंने बहुत पहले, मतलब आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले बनाए हैं. ओके, so at that time CMOS latch-up was a topic over there, but now this topic is not there in your syllabus. तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स देयर वाज अ ओल्ड सब्जेक्ट VLSI डिजाइन. ओके, VLSI डिजाइन का सब्जेक्ट था, मतलब तुम लोग के पहले का बैच. सो वो बैच को दिस वाज अ सब्जेक्ट VLSI डिजाइन, सेम 6 में था वो. सो एट दैट टाइम आई हैड मेड दिस नोट्स. सो तुम लोग अभी क्या करोगे, व्हेनेवर आई एम टीचिंग यू द टॉपिक आई विल टेल यू दैट डोंट रेफर दिस मॉड्यूल दिस टॉपिक. ओके, सो अभी मैं बता रही हूँ कि सीमोस लैचअप इज नॉट देयर. ठीक है, सीमोस लैचअप तुम लोग को स्टडी नहीं करना है. और यू कैन डू वन थिंग, तुम लोग के पास सिलेबस है, यू कैन मैच विद द सिलेबस. तो सिलेबस में सीमोस लैचअप is not there, so don't read that part, don't waste your time to understand that particular topic. Even I will not teach that topic in the lecture. Is it okay? Yes, ma'am. Okay, so CMOS, हाँ तो प्लीज नोट डाउन दिस CMOS लैचअप इज नॉट देयर. ठीक है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे. Now next part, that is the MOSFET scaling. Write down, all of you please write down the topic name. Now next topic, write down MOSFET scaling. Okay, now can anybody guess what can be this scaling? क्या हो सकता है स्केलिंग, मतलब क्या? हेलो, Changing doping Information values. about MOSFET and what's this in detail. इंफॉर्मेशन अबाउट. ओके, और स्केलिंग का मतलब क्या? स्केल मतलब क्या? हम लोग जो स्केल मतलब कुछ मेजर कर रहे हैं ना, मेजरमेंट, राइट? Yeah, measuring in हाँ, detail. तो अभी मैंने अगर बोला मॉसफेट स्केलिंग मतलब क्या हो सकता है, कैन आई से इट विल बी रिलेटेड Planning the transistor on chips, chip design का. यस समवॉट राइट. ओके, और किसी के पास मोर एक्यूरेट आंसर है क्या? थोड़ा गेस करो. ओके, ठीक है, Calculating width, length. कैलकुलेटिंग. ठीक है, yes, it is related with, you can say, dimension of MOSFET. Okay, very important. MOSFET scaling मतलब क्या? It is related with MOSFET dimensions. अभी मैं जब MOSFET dimension की बात करती हूँ, that means see we are studying the VLSI. VLSI means very large scale integration. तो तुम लोग को क्या करना है as a VLSI engineer? Your aim is, एक particular chip तुम लोग को दिया जाएगा, suppose a small chip is given, और तुम लोग को बोला ये चिप में आई वॉन्ट 1000 ट्रांजिस्टर टू बी फैब्रिकेटेड. तो जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर तुम लोग को फैब्रिकेट करने हैं, दैट मीन्स आई विल से आई एम इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर. इज इट ओके? तुम लोग ट्रांजिस्टर का डेंसिटी बढ़ा रहे हो. इज इट ओके? Yes, ma'am. तो VLSI मतलब यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विच कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप. दैट इज द स्टडी ऑफ VLSI. तो तुम लोग कितना सबसे मतलब कितना ज्यादा तुम लोग ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट कर सकते हो छोटे इन अ स्मॉल एरिया और इन अ स्मॉल चिप, दैट इज नथिंग बट योर VLSI. अभी वो करने के लिए ओके, तुम लोग को पता है कि हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो इट वाज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स था. ठीक है, माइक्रो टेक्नोलॉजी था.
माइक्रो टेक्नोलॉजी मतलब क्या? माइक्रो टेक्नोलॉजी मीन्स जो मॉसफेट हम लोग बात कर रहे हो, ओके, मॉसफेट का, नाउ यू नो द मॉसफेट स्ट्रक्चर। तो मॉसफेट के स्ट्रक्चर में देर इज अ गेट। सपोज हम लोग सिर्फ गेट को लेते हैं, ओके, वी विल नॉट डिस्कस डिफ्यूजन वगैरह, हम लोग सिर्फ सिर्फ गेट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। सो गेट के नीचे यू नो दैट देर इज अ चैनल, वो चैनल का एक लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ अ चैनल, एंड वही चैनल का एक विड्थ भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज डब्ल्यू, विड्थ ऑफ अ चैनल। So can I say this W and L are giving you the area parameters of the MOSFET? Can I say like that? Yes, ma'am. हाँ, यस। इसका मतलब ये है कि अभी गेट का लेंथ कितना है, गेट मतलब गेट का लेंथ, और यू कैन से चैनल का लेंथ, चैनल का लेंथ कितना है, चैनल का विड्थ कितना है, इससे डिसाइड होगा कि उसको कितना स्पेस चाहिए, ओके, वन ट्रांजिस्टर को चिप पे कितना स्पेस चाहिए। सो दैट इज मेजर्ड। अगर मैंने बोला कि गेट का लेंथ इज 130 माइक्रोमीटर, सपोज, ओके, 130 माइक्रोमीटर बोला, तो इसका मतलब क्या है? गेट का लेंथ is 130 micrometer. So micrometer means you are specifying the gate length in terms of micrometer. तो जब तक सब कुछ माइक्रोमीटर में था, ओके, जब तक all the dimensions were in the micrometer range, that technology is called as a micro electronics or micro technology. तो माइक्रो टेक्नोलॉजी में जितने भी डायमेंशंस थे, when we are saying dimensions, अगर MOSFET आ रहा है तो MOSFET के dimensions are width of a channel and length of a channel. Okay, so these width and length of a channel are in माइक्रो स्केल, ओके। तो वो माइक्रो स्केल में अगर है देन दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो टेक्नोलॉजी। अभी माइक्रो टेक्नोलॉजी का एरा गया, अभी हम लोग है नैनो टेक्नोलॉजी में, ओके। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब व्हाट इज द माइक्रो मीन्स 10 रेज़ टू व्हाट? -6. -6। minus हाँ, तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो तुम लोग सोच सकते हो कि अगर मैंने बोला 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा हो गया, ओके। सो उतना सा, दैट सपोज 1 माइक्रोमीटर इज द लेंथ ऑफ अ चैनल, तो दैट इज, सो दैट गेट लेंथ, और यू कैन से चैनल लेंथ और चैनल विड्थ। सो 1 माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी अगर मैंने बोला 1 नैनोमीटर, सो और यू कैन से the device dimensions, if they are specified in nanometer scale, that means you are working on a nanotechnology. तो अगर मैंने बोला कि अभी हम लोग माइक्रोमीटर से लेके माइक्रोमीटर से चालू किया और नैनोमीटर पे आ गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग, वी आर एडवांसिंग इन द टेक्नोलॉजी, ओके। दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द डायमेंशंस ऑफ द मॉसफेट, ओके। अगर पहले हम लोग माइक्रोमीटर का यूज कर रहे थे और अभी हम लोग नैनोमीटर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कैन आई से नाउ द डिवाइस डायमेंशन इज रिड्यूस्ड? Yes, sir. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहले 130 माइक्रोमीटर था और अभी अगर 130 नैनोमीटर है, दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस्ड द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द मॉसफेट। नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ओवरऑल डायमेंशन? क्यों करना है? So that we can increase the number of devices in यस, a single chip, and we यस, can यस, राइट, reduce the size and use it बराबर in a बराबर। compact device. अभी तुम लोग सोच सकते हो कि एकदम जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर इन्वेंट किया था तो कंप्यूटर का साइज पता है कितना था? इसको बहुत बड़ा। ऑलमोस्ट एक About रूम a जो है, room. अभी तुम लोग का जो एक रूम है ना, रूम, हम लोग जो रूम में बैठते हैं, कोई भी हॉल लो, तो उतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था, सोचो, ओके। सो जब इन्वेंट हुआ था, अभी कंप्यूटर कितना साइज का है? अभी कितना साइज का है कंप्यूटर? अभी जो हम लोग यूज करते हो लैपटॉप है अपने पास, ओके। तो लैपटॉप मतलब एक टेबल के बहुत कम एरिया में आ जाता है, राइट। और यू कैन से तुम लोग अगर यू आर यूजिंग मोबाइल, तो मोबाइल में भी एक कंप्यूटर होता है, ओके, देयर इज अ चिप। तो वो मतलब यू कैन थिंक ऑफ कि कितना VLSI एडवांस हुआ है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली मॉसफेट स्केलिंग। हम लोग ने क्या किया, मॉसफेट को स्केल डाउन किया है, स्केल डाउन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब है कि मॉसफेट का साइज रिड्यूस करना, ओके। वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मॉसफेट। स्केल डाउन का मतलब है साइज रिड्यूस करना, स्केल अप मतलब साइज को इंक्रीज करना। सो व्हेन वी आर सेइंग मॉसफेट स्केलिंग, actually here we are downscaling the MOSFET. Downscaling मतलब हम लोग MOSFET का जो डायमेंशन है, and when we are saying MOSFET dimension, it is related with channel length and width, ओके। तो मैंने अगर बोला MOSFET को स्केल डाउन करना है, मतलब तुम लोग क्या करोगे, चैनल का जो लेंथ एंड विड्थ है उसको तुम लोग रिड्यूस करोगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ MOSFET स्केलिंग। अभी ये रिड्यूस करना है, देन देयर इज अ प्रोसीजर, ओके। देयर आर टाइप्स हाउ टू रिड्यूस। एब्रप्टली हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, सो देयर आर टू मेथड्स टू रिड्यूस दी
MOSFET dimensions. What are those types? All of you just write down two types of MOSFET scaling. Two types of MOSFET scaling. Write down first one is a full scaling. Two types of MOSFET scaling. First write down full scaling. And second is full scaling के bracket में लिखो, side में bracket में लिखो. It is also called as a constant field scaling. मैंने ये highlight किया, you can see over here. Full scaling is also called as a constant field scaling. And write down second type. Second type is constant voltage scaling. Second is constant voltage scaling. Okay. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are reducing the size of the MOSFET. Okay. So micro electronics से हम लोग nano electronics पे आ गए, माइक्रो टेक्नोलॉजी से नैनो टेक्नोलॉजी पे आ गए. दैट मीन्स हम लोग ने किया क्या? हम लोग ने एक्चुअली मॉसफेट का जो साइज है उसको रिड्यूस किया. और ये क्यों किया? बिकॉज ऑफ दैट नाउ इन अ सिंगल चिप, ओके, एक सिंगल चिप पे बिलियंस ऑफ और यू कैन से ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी एकोमोडेटेड. ओके, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ VLSI. दैट इज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, तो इसमें एक्चुअली तुम लोग क्या कर रहे हो? मॉसफेट का साइज, ओवरऑल साइज रिड्यूस कर रहे हो. ओके, स्केलिंग के दो टाइप्स है. ओके, और यहाँ पे स्केलिंग मतलब हम लोग रिड्यूस करेंगे. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द साइज. ओके, साइज हम लोग इंक्रीज नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग को डिवाइसेस कॉम्पैक्ट बनाने हैं. ओके, तो उसके लिए हम लोग साइज रिड्यूस करेंगे. So there are two types, full scaling and constant voltage scaling. Full scaling is also called as constant field scaling. ये तुम लोगों ने नोट डाउन किया है. Now next write down the scaling parameter. Write down it is denoted by S or it is also called as a scaling factor S. अभी तुम लोग बोल रहे हो कि स्केल करना है, स्केल डाउन करना है. ओके, स्केल डाउन करना है. सो बाय व्हाट अमाउंट? Okay, so that is decided by a factor which is called as scaling factor denoted by S. Write down that capital S is called as a scaling factor. So scaling factor जो भी रहेगा, उसका वैल्यू जो भी रहेगा, what you will do, you will divide all the dimensions. Okay, जितने भी dimensions है MOSFET के, for example channel, length of a channel and width of a channel, तो उसको तुम लोग अगर स्केल डाउन करना है, मुझे L और W को स्केल डाउन करना है, so what I will do, I will divide that L, original L and original W by S. ओके, उसको डिवाइड बाय S करेंगे. सो उसके बाद जो भी अपने को मिलेगा दैट विल बी द स्केल्ड डिवाइस. ओके, दैट विल बी द स्केल्ड डिवाइस. मतलब उसको स्केलिंग कर दिया हम लोग ने, उसका हम लोग ने साइज रिड्यूस कर दिया है. नाउ वट एवर वी हैव गॉट आफ्टर स्केलिंग दैट इज कॉल्ड एज स्केल्ड डिवाइस. ओके, अभी हम लोग स्केल जब करते हैं, ओके, व्हेन वी आर स्केलिंग डाउन द डिवाइस, व्हाट नाउ द सिंपल क्वेश्चन, if I'm going from microelectronics to nano electronics, means if I'm scaling down the device, okay, if I'm scaling down the MOSFET dimensions, can it affect the MOSFET characteristics? Yes, ma'am. Yes. Okay, please note this point, this is very important. अभी it is not easy to scale down the MOSFET. okay, जब भी हम लोग MOSFET को scale down करेंगे, सी अभी ये मैं MOSFET के लिए बोल रही हूँ, बट इट इज एक्चुअली फॉर ईच एंड एवरी डिवाइस. ओके, कोई भी डिवाइस हो, सबके लिए यही होगा. अभी हम लोग MOSFET के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर तुम लोगों ने डायोड की बात की या तुम लोगों ने रेजिस्टर लिया या BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके, तो सबके लिए ये सेम चीज होगा. ओके, सो अगर तुम लोग कोई भी डिवाइस को स्केल डाउन कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, ओरिजिनल डिवाइस जो था उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, नाउ व्हेन आई एम सेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन यू गेस? W by L. नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस मॉसफेट का तुम लोगों को मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था ना EDC में. Yes, ma'am. Gain. व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, डू यू नो VI कैरेक्टरिस्टिक्स? VI, Yes, ma'am. VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज एंड करंट. ओके, अभी तुम लोग जब वोल्टेज एंड करंट बोलते हो तब मॉसफेट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. So what are they? They will be drain characteristics. Drain मतलब ID versus VDS curve. Then transfer characteristics, that is that is ID versus VGS curve. Okay, so these two characteristics, एक transfer और एक drain, ये तुम लोग को मैंने EDC में पढ़ाया था. All of you remember that?
Yes, ma'am. Yeah. So these are the characteristics. So whenever I am scaling down the device, whenever I am scaling down the MOSFET, obviously there will be change, there will be effect on the VI characteristics of MOSFET. Okay, at the same time there will be some additional effects we will come into picture. Okay, तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है. So हम लोग स्केल डाउन जब कर रहे हैं, सो द एक्सटेंट ऑफ अ स्केलिंग, एक्सटेंट मतलब कहाँ तक तुम लोग स्केल डाउन कर सकते हो. ओके, क्योंकि स्केलिंग डाउन कर रहे हो तो इट डजेंट मीन कि तुम लोग का ऑपरेशन पूरा बिगड़ गया तो चलेगा, नहीं. ओके, जो भी तुम लोग का एप्लीकेशन है वो वैसे ही रन होना चाहिए. ओके, वहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स you have to take care of all those things. Okay, what are the second order effects, मतलब scale down कर रहे हो तो उसका कुछ effect होगा characteristics पे. What is the effect? You have to consider that effect also. Okay, so by considering that effect, you need to analyze your circuit, you have to design your circuit. Okay, so the extent of scaling is achievable is obviously determined by the fabrication technology or by minimum feature size. अभी ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मिनिमम फीचर साइज. ना मिनिमम फीचर साइज मतलब क्या? अभी तुम लोग को मैंने बताया कि मॉसफेट कहाँ पे फैब्रिकेट होता है. इट इज इन द फाउंड्री. फाउंड्री मतलब एक यू कैन से कंपनी है जहाँ पे मॉसफेट फैब्रिकेट हो रहा है. सो दे आर यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फॉर द फैब्रिकेशन. ओके, सो दैट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? अभी मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे रही हूँ. तुम लोग अभी है ना, आफ्टर द लेक्चर इफ यू गेट टाइम प्लीज सर्च ऑन दिस. एक टेक्नोलॉजी है स्काई वाटर 130 नैनोमीटर. ओके, एक मिनट, आई विल टाइप इन द चैट बॉक्स, तुम लोग को पता चलेगा. यू कैन नोट दिस डाउन. यू कैन रिसर्च ऑन दिस स्काई वाटर 130 नैनोमीटर. ओके, मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया. इस बाद में तुम लोग को जब टाइम मिले प्लीज गूगल दिस. ओके, इसको इस पर थोड़ा रिसर्च करो. सो 130 नैनोमीटर इज द टेक्नोलॉजी. सी, जब मैंने तुम लोग, इफ यू आर VLSI इंजीनियर, ठीक है, और तुम लोग ने बोला कि मैंने एक चिप डिजाइन किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा विच टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड. तो विच टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड मींस, और यू कैन से विच नोड यू हैव यूज्ड. तो नोड और टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है तुम लोग ने सर्किट 130 नैनोमीटर में बनाया है, या तुम लोग ने 180 नैनोमीटर में बनाया है, या 160 नैनोमीटर में बनाया है, या 16 नैनोमीटर में, या 7 नैनोमीटर में. ओके, सो ऑल दीज are the processing nodes, or you can say all these are the fabrication technologies available. Okay, अभी ये जो टेक्नोलॉजीज है, तो इसमें से तुम लोगों ने कौन से नोड पे काम किया है, कौन से नोड पे सर्किट को डिजाइन किया है, कौन से नोड पे मॉसफेट को फैब्रिकेट किया है. सो ये जो अभी यहाँ पे, इफ देयर इज इफ द नेम इज 130 नैनोमीटर, दैट मीन्स 130 नैनोमीटर का मतलब ये है कि मिनिमम फीचर साइज. ओके, मिनिमम फीचर साइज इज द 130 नैनोमीटर. ओके, अभी सपोज मैंने बोला एक मॉसफेट तुम लोग ले रहे हो. ओके, सो वो मॉसफेट का जो गेट का लेंथ रहेगा, ओके, गेट का लेंथ और इट कैन बी विड्थ. ओके, गेट का लेंथ और इट कैन बी विड्थ, तो वो जो रहेगा वो मिनिमम 130 नैनोमीटर तक ही जा सकता है. ओके, बिलो 130 नैनोमीटर यू कैन नॉट गो. दैट टेक्नोलॉजी इज द 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी. Okay, मतलब when you are saying 130 nanometer technology, that means the minimum feature size will be 130 nanometer. So 130 नैनोमीटर मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन रहेगा मॉसफेट का, सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन, दैट साइज विल बी 130 नैनोमीटर. इज इट ओके? अंडरस्टूड व्हाट इज मिनिमम फीचर साइज? Yes, ma'am. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. ये वाइवा में पूछेंगे व्हाट इज मिनिमम फीचर साइज, तो तुम लोग को तभी बताना है एग्जांपल देके. सपोज 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें मिनिमम फीचर साइज विल बी 130 नैनोमीटर. एंड 130 नैनोमीटर मिनिमम फीचर साइज मतलब जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन रहेगा, जो भी, दैट कैन बी एनी डायमेंशन, स्मॉलेस्ट डायमेंशन विल बी 130 नैनोमीटर. उसके नीचे मीन्स यू कैन नॉट, if you are using 130 nanometer node, okay, तुम लोग 130 nanometer का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, then you cannot fabricate the MOSFET with a gate length of 16 nanometer. 16. Is it okay? Understood? Hello. Hello, ma'am. Can Hello. you repeat that last part? Okay, see, we are talking about the minimum feature size. So minimum feature size is given by the process node, or you can say technology. ठीक है,
तो अगर मैंने बोला 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, ओके 130 नैनोमीटर, अभी इसको थोड़ा डिटेल में तुम लोग गूगल पे सर्च करो कि क्या है, वो तुम लोग को समझेगा। तो 130 नैनोमीटर अगर टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि इट इज द मिनिमम फीचर साइज। दैट मीन्स मॉसफेट का कोई भी डायमेंशन, ओके, कोई भी डायमेंशन मतलब एग्जांपल में सपोज गेट का लेंथ एंड गेट का विड्थ, सो दैट डायमेंशन मिनिमम 130 नैनोमीटर तक ही जाएगा। ओके, इट कैनॉट बी लेसर देन 130 नैनोमीटर, मतलब 129 भी नहीं चलेगा। इज इट ओके? समझा अभी? Yes, ma'am. Yeah. हाँ हाँ, तो सो इफ यू आर वर्किंग ऑन 130 नैनोमीटर नोड, तो तुम लोग 130 नैनोमीटर का मिनिमम फीचर साइज पे ही काम करोगे। मतलब जो भी डायमेंशन तुम लोग व्हेन यू आर ड्राइंग द लेआउट, अभी हम लोग बाद में जब लेआउट पढ़ेंगे ना, तो लेआउट में तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग गेट ड्रॉ करोगे, ओके, गेट का लेयर ड्रॉ करोगे। तो वो जो लेयर का विड्थ है, तो वो विड्थ जो रहेगा ना, तो वो 130 नैनोमीटर ही होना चाहिए, मतलब 130 नैनोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इट कैन बी 130 नैनोमीटर और इट कैन बी उसका मल्टीपल, 130 नैनोमीटर का मल्टीपल चलेगा, बट इट कैनॉट बी लेस देन 130 नैनोमीटर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम फीचर साइज। इज इट ओके? अभी समझा सबको? Yes, ma'am. Clear now. प्लीज राइट डाउन दिस मिनिमम फीचर साइज इन योर ओन वर्ड्स, ओके? तुम लोग को जो समझा है तुम लोग अपने इसमें लिखो। अगर मुझे डिक्टेट करना है, देन यू कैन राइट मिनिमम फीचर साइज इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन possible, smallest dimension of MOSFET possible, smallest possible dimension of MOSFET. Example, you can write width, channel width or channel length. Completed? Hello? Hello? Yes, ma'am. You're done. Yes, ma'am. हाँ, तो वो नोट डाउन किया। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ स्केलिंग। ओके, और आज जो भी बताया मैंने, प्लीज थोड़ा क्या बोलते रिवाइज करो एंड सर्च ऑन द गूगल अबाउट स्काई 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, तो तुम लोग को थोड़ा आइडिया आएगा कि होता क्या है। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, so please be prepared. Okay, so one sec, I will take the attendance and then you can leave. Wait. So now there are 38 students present. Okay, 38 लोगों का ही attendance लगेगा, क्योंकि अभी मैंने attendance लिया, तो अभी जितने present है उतने ही लोगों का लगेगा attendance. Okay, so I have taken the attendance. You can leave, and please don't forget to cast your vote for the sports coordinator nomination. ठीक है? I will give that link at 12:45. चलो, bye. See you. Thank you so much, miss. Okay, Bye bye. bye. Hello. Okay, thank you, ma'am. Okay. Hello. हाँ, बोलो. Ma'am, I have a doubt. Like, we are scaling it to a lower scale. So, will quantum effect come into consideration, or do we have to consider quantum effect since it is on the lower scale? Yes, Right. all those effects will come. Those are called as the second order effects, and all these things will be taken care of by the you can say device engineer. Device engineer मतलब जो सिर्फ MOSFET को fabricate करते हैं. Understood? Okay, ma'am. Yeah, ma'am. But हाँ, since if we go to quantum scale, so then it's like we cannot have a certain, or we cannot provide certainty. So like, no. so will it affect? It is actually it is related with its effect will be on the characteristics. Whatever effect Okay. you can see, MOSFET के लिए तुम लोग को जो भी इफेक्ट दिखेगा ना, all those effects can be seen on the characteristics only. You have to identify those effects, और अभी इस पे रिसर्च अभी भी चल रहा है. ओके, एंड दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि MOSFET अभी हम लोग ने जो स्टडी किया वो उतना ही है. ओके, whatever डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ट्रांसफर एंड ड्रेन. ओके, ट्रांसफर एंड ड्रेन हम लोग ने जो अभी स्टडी किया है वो उतना ही नहीं है, उस पर रिसर्च अभी भी चालू है. एंड whatever आर द न्यू इफेक्ट्स व्हिच आर कमिंग इनटू पिक्चर, वो हम लोग वो क्या होता है, वो रिसर्च पेपर में पब्लिश होते हैं. एंड वंस दे आर क्लियर, देन दे विल बी इंट्रोड्यूस इन दी यू कैन से बुक्स. ठीक है, और उसके बाद तुम लोग को फिर वो आएगा, तब तक नहीं आएगा, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन. और जो ये है कि whenever we are scaling down, तो obviously उसका इफेक्ट होगा. Okay, and that effect is nothing but the second order effects. So that we will see after you can say after completing this part. Scaling खत्म होने के बाद we will study the short channel effects.
तो शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स मतलब द इफेक्ट्स which are there because of scaling down the MOSFET. समझा? Here we are not going to study the quantum physics and mechanics. We will not go in that detail. Okay, that is the completely different domain. Here what we are interested in, here we are interested in the effect on the MOSFET characteristics because of the scaling. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay? Clear. Okay, sure. Bye. Thank you, ma'am. Okay, bye. थैंक यू मिस मैम। हाँ बोलो। मैम हाँ हाँ कुशार बोलो कुशार। मैम इट वुड बी ओके कि मैं अभी पार्टिसिपेट करूं फॉर स्पोर्ट। कहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए? या मैम। तो अभी फिर मुझे ठीक है चलेगा, मैं तेरा भी नाम डाल देती हूँ। फिर जो अभी एक फॉर्म आएगा ना उसमें वोटिंग के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, तुम लोग अपना ये क्या बोलते हैं, अभी वोटिंग होगा तो उसके लिए तुम लोग पब्लिक क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कर सकते हो क्लास में कि मुझे वोट दो वगैरह, दैट यू कैन डू। ठीक है ठीक है, I will include your name also in that form and I will say send that link at 12:45 sorry 1:45. okay ठीक है चल बाय। ओके मैम और टेक्निकल हेड के लिए और किसने किसने ये की है? टेक्निकल हेड के लिए ओनली वन नॉमिनेशन, दैट इज यश मामूनकर। बाकी कोई नहीं अभी तक टेक्निकल के लिए, नोबडी इज देयर। इवन कल्चरल एंड जीएस के लिए सिर्फ एक ही